मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी ने माणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी ने माणी। मैं नैनी नींद न आवे जियो, मैं नैनी नींद न आवे जियो, पावे अन्न न पानी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी ने माणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी ने माणी। श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार। कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार। कूड़ काया कूड़ कपड़े कूड़ रूप अपार। कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार। कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार। किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलन हार। कूड़ मिठा कूड़ माखियो कूड़ डोबै पूर। नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। आसा दीवार दी 10वीं पौड़ी और उस दे नाल पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे 2 श्लोक। प्रथम श्लोक दे जो साहिब मूल भाव अंकित करते ने वो ये नानक वखाणे बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। हे प्रभु, मेरी ये बेनती है, अरदास है, तैथों बिना सब मिथ्या है, तैथों बिना सब कूड़ है। तू ही सच है, बाकी सब कूड़ है। जो हुण है ते बाद विच नहीं, जो सवेरे नहीं ते शाम नूं है, जो शाम नूं है ते सवेरे नहीं, ਉਹਨੂੰ कूड़ कहते ने, ਉਹਨੂੰ मिथ्या कहते ने, ਉਹਨੂੰ झूठ कहते ने। सच ते सਦੀवी है पर संसार सदीवी नहीं। ये गल वखरी है कि संसार नूं निरंकार दी छाया आखे, पर जैसे दरखत दी छाया बदलती है ढलती है, हू बहु संसार बदलता है ढलता है, लेकिन सच अपनी थां ते अटल है, कायम है। दरखत ते अपनी थां ते खड़ा है, छाया ढलदी है, बनदी है, खत्म होती है। हू बहु संसार बनता है, ढलदा है, खत्म होता है, पर निरंकार निश्चल है। साहिब कहते ने, हे अकाल पुरख, तैथों बिना सब कुछ कूड़ है। तो सब कुछ दे जो कुछ खास जिक्र करन जोग है, साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उसका बकायदा जिक्र किया है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। संसार दे सब तो वड्डी हस्ती हुक्मरान है, राजा है, वही चर्चा का पात्र बनता है, वही मनुख की जबान ते ज्यादा होता है। मनुख के विचारों दे भी राजा ही छाया रहिंदा है। प्राचीन समय तो ऐसा ही चले आ रहा है कि मनुखी जहन दे मनुखी गुफ्तगू दे राजा ही मौजूद रहिंदा है। जो हुक्मरान होंदा है उहदी ही चर्चा, जो हुक्मरान है उहदी सोचनी।
ਉਂਝ ਤੇ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ 10-5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹੀ, ਸੋਚਣੀ ਇਹੀ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜੇ, ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੀਬਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਮੰਨੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਕਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਲਕਬ ਜੁੜਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਹਰੀ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰਜਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਸੋ ਰਾਜ ਛੋੜ ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਧਿਆਈਏ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤ੍ਰਿਪਤ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਕਬ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਕੂੜ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਦਾ ਪਰਜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਾਲਕ ਖੇਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਰਜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਦਾ ਖੇਲ, ਬਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਲੀਲਾ, ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਦੀ। ਔਰ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖਿਡੌਣੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਰੇਡੀਓ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਹਨ ਖਿਡੌਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਿਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਚਪਨਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਅਸਤ, न के बासाल तवंगरी बा दिल अस्त, न के बमाल। बुजुर्गी अकल तो है, उम्र तो नहीं, और अमीरी दिल तो है, माल असबाब तो नहीं। इहदे कोल धन कितना है, इहदे कोल संपदा कितनी है, ये अमीरी दे मापदंड नहीं ने, ये अमीरी दे नाप तोल नहीं ने। अमीरी दा नाप तोल है कि इहदा दिल कितना क वड्डा है। धन संपदा बहुत वड्डी होवे, दिल बहुत छोटा होवे, उस धन संपदा नूं न खुद वरत सकेगा, न दूजे नूं वरतन देगा, न खुद सुख हासिल कर सकेगा,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸੁਖ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਛਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਕੂੜ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਰਜਾ ਹੈ? ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਖੇਡ, ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ। ਪਰਜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੂੜ ਹੈ। ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਲ ਸਾਧਨਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਪਦਾਰਥ ਮਿਥਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਜਗਤ ਮਿਥਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਸੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਿਥਿਆ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਜੀਵਣਾ, ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਜੀਵਣਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜੀਵਣਾ, ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜੀਵਣਾ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਿਆ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਿਆ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਜਗਤ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जिथे तक ये सारा जगत दिखाई दे रहा है कूड़ है, मिथ्या है। कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार, सोने सोने चंदोए शामियाने ताणने, और ये खूबसूरत महल माड़ियां ते इन्हां महल माड़ियां दे च रहण वाले बैसन वाले साहिब कहते हैं सब कूड़ है, सब मिथ्या है। ये माड़ियां अज हैं कल नहीं, ये शामियाने तणे हुए अज हैं कल नहीं, और इन्हां दे च रहण वाले अज हैं ते कल नहीं। इस वास्ते कुछ धार्मिक पुरुषां ने ते समुचे संसार नूं एक धर्मशाला ही कह दिता है, मुसाफरखाना कह दिता है। मुसाफरखाने दे च जैसे मुसाफर आउंदे ने जाउंदे ने, सदीवी कोई नहीं टिकदा, सराय है ये जगत, आमना जावना इस दे च बने होया है। रोज नवे जीव आ रहे ने, रोज पुराने रुखसत हो रहे ने। मुसाफर खाना है, कोई इस मुसाफर खाने च 80 साल रहिंदा है, कोई 60 साल रहिंदा है, कोई 40 साल रहिंदा है, कोई 40 दिन रहिंदा है, रुखसत होंदा है, होर नवे आउंदे ने। ये आवाजाई इस मुसाफर खाने च रोज जारी है। नैनो देखत ए जग जाई, देखदियां इन्हां अखां दे नाल, लेकिन फिर भी एक गल भुलांदे हैं और यकीन करते हैं संसार सच है, निरंकार झूठ है। साहिब कहते नहीं, ये महल माड़ियां झूठ ने, ये मंडप ये शामियाने ये चंदोए तने हुए झूठ ने, इन्हां दे च बैठण वाले वो भी मिथ्या ने, वो भी झूठ है। कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैनन हार, सोयना जिहदी चमक दमक आद काल तो मनुख नूं अपनी तरफ खिंचदी रही है। दरअसल कंचन दा ही बहुत गहरे तल दे मनुख ते प्रभाव हो रहा है। मनुख दी लंबी चौड़ी भटकना कंचन करके ही है, सोयने करके है। साहिब कहते ने ये सोना ये भी झूठ है, ये भी मिथ्या है, ਇਹਦੀ चमक भी सदी भी नहीं रहिंदी, और ये भी गल जाएगा ढल जाएगा, अज है कल नहीं।
इस सोने दे गहने कूड़ ने, झूठ ने, और चांदी ये भी झूठ है। ते चांदी ते सोने दे जिहड़े गहने पाण वाले ने, साहिब कहंदे ने वो भी कूड़ है। कूड़ पहनणहार भी अज है ते कल नहीं। दरअसल मनुख दे अंदर आद काल तो ये भाव बनया है कि मैं सुंदर दिखाई देवां ते लोकी मैनू सुंदर मनन। इस वास्ते हार शिंगार दा इत्थों जन्म होया है। लेकिन ये मनुख दे अंदर हीण भाव है। इसने अपने आप को करूप क्यों महसूस किया? दरअसल करूपता ते अंदर से, शिंगार इसने बाहर किया। मलनता ते अंदर से, सफाई इसने बाहर की थी। भैड़ापन ते अंदर से, संवारिया शिंगारिया इसने बाहर। एक आलम दा कहना है, हजार आराइशें सदके हैं उसकी सादावाजी पर, नहीं मोहताज जेवर इल्म अकल ने जिसको संवारा है। जिन्हों ज्ञान ने, जिन्हों इल्म ने संवारिया है, शिंगारिया है, उन्होंने किसी होर शिंगार की लोड़ नहीं, उन्होंने किसी होर गहणियां की लोड़ नहीं। पुरुष नालों ये हीण भाव ज्यादा नारी के अंदर है। इस वास्ते उसका बहुत सारा समा ते उसका बहुत सारा धन, उसकी बहुत सारी शक्ति हार शिंगार दे विच ही बतीत हो जाती है। कदी बहौर झात मारिए, मोर कितना खूबसूरत है, हंस कितना खूबसूरत है, मछलियां दे उत्ते कितनी सोहनी चित्रकारी है, जंगली जानवर पशु कितने सोहने ढंग नाल अकाल पुरख ने उन्होंने संवारिया है, शिंगारिया है। दरअसल इस तरह का सुपन अकाल पुरख ने मनुख नूं भी दिता है, लेकिन वो अंदरूनी है, महान है। उसकी तरफ इसने कदी झात नहीं मारी, उसकी तरफ इसने कदी देखिया नहीं। इस वास्ते इसका समा, इसकी शक्ति बाहर के सुपन दे नष्ट होती रही है। तो साहिब कहते ने ये सोना, ये चांदी और सोने ते चांदी दे बने हुए ये गहने और इन्हों पहनण वाले, साहिब कहते सब कूड़ है, सब मिथ्या है। कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार। ये जो अपार रूप है, अत्यंत सुंदरता है काया दी, और खास करके कपड़ियां दे नाल होर सुहावनी है, होर सुंदर है। साहिब कहते ने काया भी कूड़, ये कपड़े भी कूड़, और ये जिहड़ी अपार सुंदरता है ये भी मिथ्या है। देखदियां देखदियां ही मनुख दा जोबन ढल जाता है। देखदियां देखदियां ही मनुख अपनी अखां नाल ही वेख लैंदा है, सुंदरता मेरी नष्ट हो गई। वो तिखे नैन नहीं रहे, वो सुराही जैसी गर्दन नहीं रही, वो मृग नैन नहीं रहे। सहजे सहजे इंद्रियां दी चमक दमक रुखसत हो रही है, लेकिन रुखसत हो रही है, मनुख फिर भी नहीं मनता। पूर्ण तौर पर यकीन फिर भी नहीं आउंदा कि सारे दा सारा जीवन ही रुखसत हो जाएगा। इते ढलदी हुई छाया है और ढल जाएगी। मनुख इसनों सदैवी मन लैंदा है, अमर मन लैंदा है। कहंदे ने भगत कबीर जी दे डेरे एक ऐसी पनहारी सी जो सारा दिन आए हुए यात्रुओं नूं, भगत जनां नूं पानी पिलांदी सी। तन दे उत्ते खद्दड़ दा लिबास, लेकिन वह भी लीरां लीरां, चीथड़े बिल्कुल। भगत कबीर जी दे चेले एक दिन गंगा तट तो होके आए, ते उस दिन सिकंदर लोधी दी बेगम हिंदू यात्रुओं नूं वेखण लई गंगा दे तट ते आई सी। सजिया होया रथ और हार शिंगार नाल संवारी हुई ये बेगम, बड़ा कीमती उसका लिबास। चेले वेखदे न ते दंग रह गए। इतना कीमती लिबास, लिबास दे च ही हीरे जड़त ने, मोती जड़त ने, नीलम पन्ने जड़त ने, मखमली लिबास। कबीर दे चेले कबीर कोल आके गिला करदे ने कि ईश्वर बेइंसाफियां करदा है, जो सारा दिन पानी पिलांदी है, लोकां दी प्यास मिटांदी है, आए हुए यात्रुओं का हर तरीके नाल ख्याल रखती है, और जो सारा दिन भजन करती है भावना नाल, उहदे कपड़े लीरां लीरां
और खद्दड़ ते। जो पता नहीं खुदा दा नां लैंदी भी है कि नहीं, उहदे कपड़े इतने कीमती, उसका लिबास अत्यंत सुंदर। उस वक्त कबीर कहते ने नहीं, ये जो पानी पिलांदी है, ये जो सारा दिन सतनाम दी धुन दे लीन रहिंदी है, ये कपड़े कीमती ने, महान ने। चेले कहते ने जिहड़े कपड़े असी देखे ने, जे किधरे तुसी देखदे तां कह उठदे वाकई ये कपड़े महान ने, ये रूप महान है। उत्थे भगत कबीर दो श्लोक उचारण करते हैं जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज ने। कबीर हैंगे बाहन सघन घन, छत्रपति की नार, तासो पटंतर ना पूजे, हर जन की पनिहार। मैं मनदा उस बेगम दे घर दे हाथी ने, घोड़े ने, कंचन है, सोना चांदी है, बहुत सुंदर महल ने, और उदे कपड़े मखमली ने। लेकिन मैं फिर भी कहना तासो पटंतर ना पूजे, हर जन की पनिहार। ये हरी दे जना दी जड़ी पनहारी है, जो सारा दिन पानी पिलांदी है हरी दे जना नूं, भगतां नूं, इहदे कपड़ियां दे सामने उस बेगम दे कपड़े तुच्छ ने, कुछ भी नहीं। इन्हां कपड़ियां नाल उन्हां दा की मुकाबला, ये कपड़े महान ने। तां चेले सारे बोल पे भगत जी वो मखमली लिबास है, उहदे च हीरे ते मोती जड़त ने। उस वक्त कबीर समझाते ने भी गल सुनो। कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान। मैं राजे दी स्त्री दी निंदा क्यों कीती? हरी दी वो जिहड़ी चेरी है, वो जिहड़ी पनहारी है, मैं उसनूं इतना वड्डा मान क्यों दिता है कि बेगम इस पनहारी दे चरनां दी खाक भी नहीं। उहदे कपड़े इहदे कपड़ियां दे सामने तुच्छ ने, उहदा रूप इहदे सामने कुछ भी नहीं। कबीर निरप नारी क्यों निंदिए, क्यों हर चेरी को मान। ओ मांग सवारे बिखे को, ए सिमरे हरि नाम। इहदे फटे पुराने कपड़ियां दे हरि वसदा है, हरि दा चिंतन है, हरि दा सिमरन है। उहदे मखमली लिबास दे संसारिक वासनावां ने, तृष्णा है, कामना है। जिहड़ा लिबास कामना नूं वधावे, मैं उसकी महिमा नहीं गायन कर सकदा। मैं ते उस लिबास की महिमा करांगा जिहदे चों राम दी धुन निकले, जिहदे प्रभु दी धुन निकले। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा भी फरमान है, बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पै दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। ओ पैना ते खज्जल खुआरी है जिहदे नाल वासना वधे। कुछ ऐसा खाना भी है जिहदे नाल वासना वधदी है, कुछ ऐसा पहनना भी है जिहदे नाल संसारिक वासना वधदी है। इस वास्ते गुरमत कहती है, ऐसा खाओ जिहदे नाल वासना सीमा दे च रहे, ऐसा पहनो जिहदे नाल कामना सीमित रहे। तो भगत कबीर कहते हैं, निरप नारी क्यों निंदी है। मैं इतनी वड्डी नारी बेगम दी निंदा क्यों कर छड़ी, उन्हों क्यों छुटे आया। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान। ओ मांग सवारे बिखे को, ए सिमरे हरि नाम। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अज दे इस पावन पवित्र श्लोक दे फरमान पे करते हैं, ए कपड़, ए सुंदर काया, ए अपार रूप सब मिथे है, सब झूठ है। कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार। रिश्ते ते होर बहुत सारे ने, पर मूल रिश्ता है मियाँ बीवी का। इस तो ही धियां पुत्र, इस तो ही अगां लंबा चौड़ा परिवार, और यही अगां चल के दादी दादा। गरज के ये मूल रिश्ता है संसार का, जिहदे नाल संसार फैलदा है। तो महाराज कहंदे ने, ये मियाँ ये बीवी, ये पति ये पत्नी, ये रिश्ते भी झूठे। भगत कबीर का एक बड़ा सुंदर शब्द है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे, कहंदे ने, खड्डी दे बैठ के कपड़ा बुन रहे सन ते लोई किधरे भोजन ले आई ते खड्डी ते बैठिया बैठिया भोजन छकन लग पे।
ਕਿਸੇ ਤਾਰਕਕ ਨੇ ਤਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਪੰਡਤ ਸੂਚਾ ਕਹੁਨ ਥਾਂ, ਜਹਾਂ ਬੈਸ ਹੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸੁੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂ। ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ, ਆਵੇਂ ਝੂਠੇ ਜਾਏ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਝੂਠੇ ਮਰੇ ਅਭਾਗੇ। कहो पंडित सूचा कवन था, जहां बैस हो भोजन खाओ। जिह्बा झूठी बोलत झूठा, कर्म नेत्र सब झूठे, इंद्री की झूठ उतरस नाई, ब्रह्म अगन के लूटे। जबान झूठी है, मिथ्या बोल रही है। अखां झूठियां ने, मिथ्या वेख रही ने। कन झूठे ने, मिथ्या सुन रहे ने। पैर झूठे ने, मिथ्या मार्ग ते चल रहे ने। हाथ झूठे ने, मिथ्या कर्म कर रहे ने। सब कुछ ते मिथ्या है, सब कुछ ते झूठ है। जिह्बा झूठी बोलत झूठा, करन नेत्र सब झूठे, इंद्री की झूठ उतरस नाई, ब्रह्म अगन के लूटे। और अगां चल के भगत कबीर कहंदे ने कि जिस तुसी आखो गोबर लेपा करिए, झाड़ू बुहारी दईए ते जगह पवित्र हो जाती, उपर गंगा जली छिड़कीए, तां आप कहंदे ने गोबर झूठा चौका झूठा, झूठी दीनी कारा, कहो कबीर ते नर सूचे, साची परी विचारा। ओही सुचे ने, ओही पवित्र ने जिन्हां दे कोल सच दी विचार है, जो सच नूं सोचदे ने, सच नूं बोलदे ने, सच नूं सुणदे ने, सच नूं वेखदे ने, सच नाल जुड़दे ने। बस ओही सुचे ने, ओही पावन ने, ओही महान ने। तो साहिब इत्थे कहंदे ने कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार। ये बीवी दा बीवी होना ते मियाँ दा मियाँ होना, पुरुष दा पुरुष होना, नारी दा नारी होना, और ये रिश्ते पति पत्नी दे साहिब कहंदे झूठे ने, एवें खप के ख्वार होंदे ने, आखिर ख्वार ही होंदे ने। और इन्हां रिश्तियां दे अज तक बंदे नूं सिवाए ख्वारी ते होर लभ्या ही की है। तो साहिब कहते हैं कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़े नेहो लगा, विसरिया करतार। झूठे दा झूठे नाल ही प्यार बजिया, इस झूठे नूं झूठ ही चंगा लगया, इस कूड़े नूं कूड़ ही चंगा लगया, ते भुल गया वो करतार जो सच है, जो सदैवी है, जो हमेशा है। कहंदे ने सजाती मेल हुंदा है, कूड़ दा कूड़ नाल ही जा मेल हुंदा है, सच दा सच नाल ही जा मेल हुंदा है। तो महाराज कहंदे ने कूड़ कूड़े नेहो लगा, इस कूड़े दा कूड़े नाल ही नेहो जाके लगया। ये कूड़ा कूड़े नाल ही जाके जुड़िया ते विसरिया करतार, भुल गया सच, भुल गया करतार नूं। किस नाल कीचे दोस्ती, सब जग चलनहार। सारा जगत चलायमान है, किस नाल दोस्ती करेगा, किस नाल रिश्ता जो है जोड़ेगा। सब कुछ ते जा रहा है, ते जे सब कुछ जा रहा है तो तेरी दोस्ती भी जाएगी, तेरी मित्रता भी जाएगी। कूड़ मिठा कूड़ माखियो, कूड़ डोबे पूर। पर कूड़ ते जीवां नूं शहद दी तरह लगदा है, इते महान मिठा करके लगदा है। इस वास्ते इस कूड़ दी मिठास दे च पूरां दे पूर डुब गए, पूरां दे पूर गर्क हो गए। एक दो नहीं, पूरां दे पूर गर्क हो गए, कुटुंब दे कुटुंब गर्क हो गए। संसार दे सारे जीव इस कूड़ दी शहद दे फस के रह गए, डुब के रह गए। नानक वखाणे बेनती, तुद बाज कूड़ों कूड़। सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते हैं, हे प्रभु मेरी ये बेनती है, मेरी ये जोदड़ी है कि तेथों बिना सब झूठ है, तेथों बिना सब कूड़ है, तू ही सच है। और जो तेरे मार्ग ते चले वही सचियार होए, जो तेरे नाल जुड़े वही सचियार होए, जो संसार नाल जुड़े वो ते कुड़ियार हो गए। जितना कोई संसारी उतना कुड़ियार है, और जितना कोई करतारी है उतना ही सचियार है। ईश्वर नाल जुड़ना दरअसल सच होना है, संसार नाल जुड़ना कूड़ होना है, ते कूड़ दा भी अपना प्रभाव है। चूंकि ये कूड़ उस सच दी छाया है, तो सच महान है, ਉਹਦੀ छाया भी अपना प्रभाव पाती है,
ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ, ਇਸ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ, ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੈ ਵਿਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੀਓ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਦੇ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ। ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ। ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ, ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਦੇ ਆਈਏ। ਫਲ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤੇ ਨਾ ਦੇ ਪਾਈਏ। ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਬ ਗਵਾਈਏ। 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਭਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੂੜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਦਾ ਦਾਰੂ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ रोग का औखद नाम। जितने मानसिक रोग ने, अहंकार है, तृष्णा है, दुबदा है, लोभ है, वासना है, झूठ है, निंदा है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, इस तरह दे ये मानसिक रोग अनंत ने। और इन्हीं मानसिक रोगों के बोझ तो शरीर के तल दे उत्ते रोग जन्म लेंदे ने, प्रगट होंदे ने। दरअसल 90% शरीर के तल दीयां बीमारियां उन्हां दीयां जड़ां मन दे च आउंदियां ने। 10% ही शरीरक रोग ने, बाकी ते सब मानसिक रोग ने। मन अत्यंत रोगी हो गया, मन रोगां नाल बोझल हो गया तो वह भार चूंकि सारे दा सारा चुक नहीं सकता, वो तन तक भेज देंदा। फिर कुछ तन नूं चुकण वास्ते दे देंदा वे हुण तू कुछ बीमारियां चुक। असल दे तमाम बीमारियां दी जड़ मन दे च है ते प्रभु दा नाम रोगां दी जड़ नूं ही कट दिंदा है। ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्ने रोगां घाण। ते ऐसा दारू है कि महाराज कहते सच सबना होए दारू पाप कड्डे थोए। सच ही सारे पापां सारे रोगां दा दारू है। सारे रोग ते पाप ये सच कट देंदा है। वाकई ये सचियार हो गया तो पहचान सतगुरु दसते ने। सच तां पर जानिए जां हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा धोए। महाराज कहते ने कि सचियार ते तां ही जानिया जाएगा जे हिरदा पावन हो गया, हिरदा सुच्चा हो गया, हिरदे दे सच दा वासा हो गया। भाव जिसदी सोचनी सच ते मबनी है, जिदा सोचना सच नहीं
ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦੇ ਆਈਏ, ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਸੁਚ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀ ਸੁਚ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੀ ਸੁਚ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਵਨ, ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਾਵਨ। तो महाराज कहते हैं सचियार ते तां ही जानिया जाएगा कि ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ सच ते मबनी हो जाए, ਉਹਦੇ फुरने सच्चे होवन, ਉਹਦੇ विचार सच्चे होवन, ਉਹਦਾ फैसला सच्चा होवे, ते ਉਹ हर वक्त सच दे पक्ष दे खड़ा होवे, सच दा ही पक्ष लवे। ते सच दा पक्ष ਉਹੀ लवेगा जो सच सोचदा है, सच नूं सोचदा है, सच नूं विचारदा है। सच दे ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ फुरने ने ऐसा मनुख ही सच दे पक्ष दे खड़ा हो सकता है। अज संसार दे मनुख दी सोचनी इतनी झूठी है, हिरदा इतना कुड़ियार है कि यह थां थां ते कूड़ दे पक्ष दे ही खड़ा होंदा है, सच दे पक्ष दे नहीं। कदी कदाई कोई ईसा सच दे पक्ष दे खड़ा होंदा है तो फिर सूली ते लटकदा है। कदी कदाई कोई सुकरात सच दा दामन पकड़दा है तो जहर दा प्याला पीण ते मजबूर होंदा है। कदी कदाई गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप गुरु अर्जन देव जी महाराज सच दे पक्ष दे खड़े होंदे ने, शहीद हो जाते हैं। और कदी कदाई कोई मजलूम दी बांह पकड़दा है, साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज। और ये हकीकत है और आप दा फरमान है, बांह जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजे बांह ना छोड़िए। जिस मजलूम दी बांह पकड़ लईए, जिस कमजोर दी बांह पकड़ लईए, हुण ते ये बांह नहीं छड़नी, चाहे अपना सिर भी चला जाए। इनू बचाना है, इहदी जो है रखिया करनी है। तो जिसदी सोचनी सच हो गई है तो हर कदम दे उत्ते सच दा पक्ष लैंदा है, सच दे पक्ष दे खड़ा है। साहिब कहंदे ने तां ही जानिया जाएगा कि यह सचियार है। सच तां पर जानिए जां हृदय सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा दोए। जद हिरदे दे चों कूड़ दी मैल उतर जाती है तो तन भी साफ सुथरा हो जाता है, तन भी पावन हो जाता है, तन दे चों भी रोग चले जाते हैं, तन की अपवित्रता भी अपने आप दूर हो जाती है। हकीकत है कि जिसका मन शुद्ध है उन्होंने तन की अपवित्रता चंगी नहीं लगेगी, वो तन नूं भी साफ सुथरा रखेगा। लेकिन जिहदा सारा जोर तन नूं साफ सुथरा रखण दे होवे ते मन का ख्याल ना होवे तां साहिब कहंदे मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना होए। सच तां पर जानिए जां सच धरे प्यार, सचियार तां होवेगा जे सच नाल प्यार है। सच नाल प्यार दा मतलब परमात्मा नाल प्यार है, ते संबंध उसे नाल ही जुड़दा है जिस नाल प्यार है। जिस नाल प्यार नहीं उस नाल कोई रिश्ता नहीं, उस नाल कोई संबंध नहीं, दूरियां बणियां रहिंदियां ने, बहुत वड्डियां दूरियां बणियां रहिंदियां ने। और यह हकीकत है जो सच तो दूर है, जो परमात्मा तो दूर है, वो किसी दे भी नेड़े नहीं, वो दूर ही दूर है। महाराज कहते ने जिहदे अंदर सच दा प्यार है बस वही सचियार है। सच तां पर जानिए जां सच धरे प्यार, नाम सुन मन रहसिए तां पाए मोख द्वार। सच दा नाम सुने ते खेड़ा अंदर पैदा हो जाए, रहस ते रमज दी दुनिया दे खो जाए, प्रसन्नता रोम रोम दे चों डुलन लग पे सच नूं सुन के। तां साहिब कहंदे ने इस तरह दे सचियार नूं मोख द्वार दी प्राप्ति हुंदी है। उहदे बंधन जन्म मरण दे कटे जांदे ने, उहदे बंधन पूर्वले संस्कारां दे सारे कटे जांदे ने, उहनूं मोख द्वार दी प्राप्ति हुंदी है, वह मुक्त हो जांदा है। दरअसल ऐसा देखा गया है कि धर्म दा मूल फल भी मोख है, मुक्ति है, स्वतंत्रता है। और यह हकीकी स्वतंत्रता है। ऐसी स्वतंत्रता जिन्हां नूं प्राप्त हो जाए वो बैरूनी गुलामी नूं पसंद नहीं करेगा और सारियां लई स्वतंत्रता दा बायस बनेगा। पर दरअसल जो अपने संस्कारां दा गुलाम है, अपने विचारां दा गुलाम है, झूठ दा गुलाम है, वो जगत नूं गुलाम रख के ही सुखी होवेगा, वो जगत नूं गुलाम रख के ही प्रसन्न होवेगा। हकीकत यह है कि गुलामां ने ही संसार नूं गुलाम कीता होया है। जो स्वयं स्वतंत्र है, मुक्त है, मुक्त पुरुषां ने
कदी संसार दे गुलामी नहीं लियांदी। संसार दे गुलामी नूं ओही लियाए ने ਜਿਹੜੇ स्वयं अपने संस्कारां दे अपने विकारां दे गुलाम सन। गुलाम नूं बैरूनी सुतंत्रता चंगी नहीं लगती, ते जिसनों अंदर दी सुतंत्रता प्राप्ति हो गई, मोक्ष द्वार दी प्राप्ति हो गई, मुक्ति दी प्राप्ति हो गई, उन्होंने बाहर दी गुलामी भी चंगी नहीं लगती। वो दुनिया नूं आजादी देवेगा, मुक्त करेगा, मोक्ष देवेगा। धर्म दा फल भी है मुक्ति, आजादी। देश आजाद हो जाए, क्षमा करनी है सच्ची आजादी नहीं। सच्ची आजादी तो यही है कि जन्म मरण दे बंधन टुट जान, संस्कारां दे बंधन टुट जान। वरना ऐसा होंदा है कि देश आजाद हो गया तां भी बंदा गुलामां दी तरह जी रहा होंदा है, तां भी अनेकां बंधन उस दे उपर होंदे ने। दुनिया दे विच अनंत देश आजाद आखे जांदे ने, पर जे मनुख नूं देखीए ते अपने संस्कारां दा गुलाम है, अपने मलीन विचारां दा गुलाम है, कूड़ दा गुलाम है। तो जो कूड़ दा गुलाम है वो बाहर सुतंत्रता पसंद नहीं करेगा। इंज कह लो सारी दुनिया दे विच अगर व्यापक रूप दे विच बैरूनी तौर ते भी गुलामी है तां गुलामां करके ही गुलामी है। मोक्ष पुरुषां करके ते बाहर मुक्ति ही आउंदी है, सुतंत्रता ही आउंदी है। तो साहिब कहंदे ने जो परमात्मा दा नाम सुनदे ही प्रसन्न हो जाए ते जिहदे अंदर सच दा प्यार पैदा होया है, पाए मोख द्वार, उन्होंने मोख द्वार की प्राप्ति हो जाती है। सच तां पर जानिए जां जुगत जाने जियो, ताई सचियार जानिया जाएगा जेकर इस दे कोल जीवन की जुगती होवे, जीवन का ढंग होवे। ते जीवन की जुगत की है? दरअसल उन्होंने पता होवे की खाना है, की पीना है, किन्ना क सोना है, की पहनना है, की बोलना है, की वेखना है, की सुनना है। समੁੱਚੀ जीवन शैली जुगती दे जिस दे कोल होवे समझ लो सचियार है। उदा उठना बैठना सोना जागना हसना रोना बोलना ये सब कुछ सच दे उत्ते मबनी होवेगा। ऐसे बंदे दा बोलना सच, वेखना सच, सुनना सच, सोना सच, जागना सच, जीवना सच, मरना भी सच। हर कर्म दे उत्ते जद सच दी मोहर होवे ते समझ लो ये सचियार है। तो महाराज कहते ने सचियार वही है जिदे कोल इस ढंग दी जीवन दी जुगती है। सच तां पर जानिए जां जुगत जाने जियो, धरत काया साध के विच दे करता वियो। जीवन दी महान जुगती केड़ी है और की होनी चाहिए? महाराज कहते ने धरती रूपी ये जड़ी काया है, ये जो शरीर है, ये धरती है। इनू कर्म भूमि करके आख्या गया है। कर्म भूमि जितना पशु जगत है उन्होंने भोग भूमि कहते ने, जितना मनुखी जगत है इनू कर्म भूमि कहते ने। पशु भोगन लई आया है, मनुख कुछ भोगन लई भी आया है पर नाले करन लई भी आया है, बीजन लई भी आया है। तो साहब कहते ने कर्म भूमि में बोवो नाम। इस कर्म भूमि दे नाम बीजो, सच नू बीजो, ताकि रोम रोम दे चों सच प्रगट होवे। धरती दे जो कुछ बीजांगे वही बार प्रगट होवेगा। हकीकत है जो इस काया दे पावांगे वही कुछ बाहर निकलेगा। जो पावे भांडे विच वस्तु सा निकले, क्या कोई करे विचारा। एक भांडे दे एक बोतल दे अगर शराब भरी है ते हुण उंडेलीए ते आखिए दे चों शरबत निकले, ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੇ नहीं, जो कुछ उस दे च पाया सी वही निकलेगा। एक बोतल दे शहद पाया ते हुण शहद निकल रही है बाहर ते बंदा आखे ਇਹਦੇ चों शराब निकले नहीं, जो कुछ पाया गया वही बाहर निकलेगा। अगर हिरदे दी इस भूमि दे इस काया दी धरती दे सच नू बीजिया गया तो बाहर सच ही प्रगट होवेगा। अखां दे कन्नां दे रसना दे रोम रोम दे बाहर सच ही प्रगट होवेगा। पर अंदर बीजिया ही कूड़ गया तो फिर रोम रोम दे कूड़ ही बाहर प्रगट होवेगा। तो महाराज कहते ने उहदे कोल जीवन दी जुगती आउंदी है, सचियार दी पहचान है कि इस काया नू धरती बना के तो जिहड़ा करता पुरख है, वो जिहड़ा ईश्वर है, ओदा बीज इस काया दे वो बीजदा है। भाव उस करते पुरख दा जो नाम है, ओदा जो सिमरन है, ये बीज वो काया दी धरती दे बोंदा है। धरत काया साध के
विच देह करता बियो सच तां पर जाणीए जा सिख सच्ची ले। सचियार ते तां ही जाणिया जाएगा जे सिखिया सच्ची लवे। ते सच्ची सिखिया दे की आउंदा है? सच्ची सिखिया दे ये आउंदा है दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। वो जीवां ते दया करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, उस तो किसी नूं चोट नहीं पहुंचेगी। उस तो जगत नूं कुछ प्राप्त ते होवेगा, उस तो चोट नहीं पहुंचेगी। इस सचियार दी पहचान है। सच तां पर जाणीए जा आत्म तीरथ करे निवास। अंतरगत तीरथ मल नाओ अंतरीव तीरथ। अपना अंतस्करण दे विच ओ निवास करे, अपनी आत्मा दे विच ओ निवास करे शुद्ध करके। दरअसल सचियार ते तां जाणिया जाएगा कि इस तरह दे आत्मा दे तीरथ दे विच कोई निवास करे ते इशनान करे। सतगुरु नूं पुछ के बह रह करे निवास। पर सवाल ये पैदा होंदा है इस आत्मा दे तीरथ ते निवास कोई किस तरह करे? सतगुरु नूं पुछ के, शब्द तो प्रेरणा लैके, शब्द दी विचार तो प्रेरणा लैके उस सच दे तीरथ ते निवास करे तां ही सचियार जानिया जाएगा। सच सबना होए दारू पाप कड्ढे धोए। सारे पापां दा दारू है सच। सारे पापां नूं धो के वो बाहर कढ देंदा है। हकीकत है कि सच नूं भुला के, सच नूं एक पासे रख के, ओदा सिमरन एक पासे रख के कोई भी धार्मिक कर्म करिए उहदे नाल पाप मिटदे नहीं। ना ज्ञान नाल मिटदे ने, ना दान नाल मिटदे ने। बड़े बड़े दानी मैले वेखे गए ने, बड़े बड़े ज्ञानी मलीन वेखे गए ने। बड़े बड़े दार्शनिक हंकारी देखे गए ने और बड़े बड़े समाज सेवकी लुटेरे वेखे गए ने। बड़े बड़े देश भगत प्रबल ढंग दे हंकारी वेखे गए ने। पर जो सच नाल जुड़ गया है उहदे सारे पाप दूर हो जाते हैं, उहदी सारी मैल धुल के बाहर आ जाती है। इस वास्ते सच ही सारे पापां दा दारू है, सच ही सारे रोगां दा दारू है ते सच ही सारे पापां नूं जड़ों कट देंदा है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, सच सबना होए दारू पाप कड्ढे धोए। नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए। मैं उन्हां दे अगों जोदड़ी करदा, बेनती करदा, तरले करदा किन्हां दे अगों? जिन्हां दे पल्ले दे च सच है, जिन्हां दे हिरदे दे च सच है। मैं उन्हां दे अगों हुक्म नहीं करदा, मैं उन्हां दे सामने नहीं आउंदा, मैं ते हथ जोड़ के उन्हां दे अगों खड़ा, मैं ते बेनती रूप विच उन्हां दे नाल बचन करदा, मैं ते जोदड़ियां उन्हां दे अगों करदा जिन्हां दे कोल सच है। दरअसल जिहदे कोल सच है वो ते इतना महान है कि जगत दियां महान हस्तियां भी ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ हथ जोड़ के खड़ियां होणगियां। गुरु नानक देव जी महाराज दरअसल ਇਹਦੇ ਚ ऐसा कहना चाहते हैं और यही कुछ कह रहे हैं कि जगत के महान जीव भी उसके अगों हथ जोड़ के खड़े होणगे जिहदे कोल सच है, जो सच नाल जुड़ गया है, जिहदे कोल सारे पापों नूं दूर करने दा दारू सच है। वो इतना महान है। महाराज कहने नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए। पौड़ी दान महिंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए। ऐसे जो सचियार ने जिन्हां दे हिरदे दे सच है, जिन्हां दे रोम रोम दे सच है, ये परिपूर्ण परमात्मा मैं ते इको ही दान तेरे कोल मंगदा कि उन्हां दे चरनां दी खाक मैनू दे, उन्हां दे चरनां दी धूड़ मैनू दे। कहंदे ने नाम अभ्यासी जिहड़ा है उहदे शरीर तो जिहड़ी वाइब्रेशन निकलदी है, तरंगां निकलदियां ने, वो सब तो ज्यादा प्रभावित करदियां ने खाक नूं ते पानी नूं। खाक अक्सीर बन जाती है, पानी अमृत बन जाता है। जिथे बैठ के कोई भजन कर रहा है, नाम उच्चारण कर रहा है, वाहिगुरु 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 ऐसा उच्चारण कर रहा है एकाग्र चित्त होके, तां आले दुआले पानी चाहे भांडे च पिया है ते चाहे घड़े विच पिया है या सरोवर है, वो पानी अमृत बनेगा और खाक अक्सीर बनेगी। दरबार साहब के सरोवर नूं इसे वास्ते ही असी अमृत सरोवर कहने हैं क्योंकि अमृतमई नाम अठे पैर उत्थे गूंजदा रहिंदा है। अठे पैर नाम दा उत्थे उच्चारण है ते नाम दी छो पानी नूं अमृत बना देंदी है, नाम दी छो खाक नूं अक्सीर बना देंदी है। ईरान दे प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख सादी साहब दा फरमान है,
सुरमा कुन तो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदा ता इंतहा। जे आद तो लैके तू अंत तक वेखना चाहना है तां जिहड़े औलिया ने जो अल्लाह नाल जुड़े हुए ने उन्हां दे चरनां दी खाक नूं अपनी अखां दे च पा, उन्हूं सुरमा बना। सुरमा कुन तो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदा ता इंतहा। दरअसल नाम दियां तरंगां, नाम दी झनकार, नाम दी झरनाहट खाक नूं और पानी नूं ज्यादा मुतासर कर दी है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल काफी चिर तक गुरु घर की सेवा करते रहे, कलम नाल भी और हत्थां नाल भी। आप लंगर भी चलाते सन ते लंगर तो फारग होके फिर आप लिखते होंदे सन। और यह भी एक इतिहास है कि एक दिन नंद लाल जैसा कवि, शायर, दार्शनिक, फिलोसफर तलवार पहन के आ गया तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे, नंद लाल तेरी कलम जो कुछ कर सकती है तेरी तलवार वो नहीं कर सकती। तेरे हथ दे कलम ही शोभा पाती है, तेरे हथ दे तलवार नहीं। तू दार्शनिक है, तू कोमल हुनरां दा मालिक है, तू मैदान जंग दे किसी दा खून नहीं वेख सकता। तू ते कोमल हुनरां दा मालिक है, तेरी कलम ही क्रांति लिया सकती है, तेनू तलवार दे नाल क्रांति लियाण दी लोड़ ही नहीं। तू कलम नूं अपने अंदर धारण कर। कहंदे एक दिन सतगुरु प्रसन्न होए ते कहण लगे, पुरखा अज साडा जी करदा है तैनू कुछ देईए, पर ऐसा ना होवे असी कुछ होर देईए तेरी मंग कुछ होर होवे, लिहाजा तू खुद मंग की देईए। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, महाराज जद मैं इस दर ते पहले पहल आया सी अनेकां मंगां नाल मेरा हिरदा भरिया होया सी। जैसे जैसे आप दे चरनां च दिन बतीत होंदे गए मंगां मिटदियां गईयां। परम पुरख महान पुरख दी संगत करीबन करीबन संसार दीयां मंगां नूं ही खत्म कर दिए। जिहदे कोल बैठ के संसार दी मंग वधे वो बंदा संसारी है, वो बंदा भगत नहीं, वो बंदा संत नहीं। ते जिहदे कोल बैठ के संसार दी मंग घटे ते करतार दी मंग पैदा होवे, दरअसल वही बंदा संत है, वही भगत है। तो नंदलाल कहने, महाराज जद मैं आया सी ते मंगां दा गुबार मेरे अंदर सी, हुण ते सहजे सहजे सारियां रुखसत हो गईयां ते हुण मैं की मंगा। गुरुदेव कहने लगे, अज असी संकल्प कीता है तेनों कुछ देना है, ते जद देना है तो चलो नहीं कोई मंग तां भी किसी मंग नूं जन्म दे, तू मंग। भाई साहब भाई नंद लाल दी ए मंग दीवाने गोया नामक पोथी ग्रंथ दे च दर्ज है। आप हाथ जोड़ के दस्त बस्ता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सन्मुख होके बेनती करते ने, जोदड़ी करते ने, शबद कुर्बाने खाके राहे संगत दिले गोया हमी बस आरजू करता। एक कोई आरजू रह गई है मेरे पातशाह, बाकी सब मिट गई ने, बाकी तमाम इच्छावां शांत हो गई। एक आरजू है, शबद कुर्बाने खाके राहे संगत दिले गोया हमी बस आरजू करदा। ऐ मेरे पातशाह एक कोई आरजू मेरा दिल करदा है कि ये संगतां, ये रसक पुरुष, ये नाम धरीक, ये नाम दे रसीए जिन्हां जिन्हां गलियां चों लंघ के आप दे दर तक पहुंचते ने, उन्हां गलियां दी खाक मैनू बना दे ताकि मैं उन्हां दे चरनां दी खाक बना। ते जे मैं उन्हां दे चरनां दी खाक बनिया तो फिर लाजमी है किसी दी मस्तक दी खाक बनागा। इस तरह के पुरुषों की खाक नूं ते मत्थे ते लाया जाता है। जो परम पुरखां दे चरनां दी खाक बन जाए वो संसार दे मत्थे दी खाक बन जाता है, वो संसार दे सिर दी खाक बन जाता है। लोगों नूं वो खाक अपने सिर दे च रखनी पैंदी है जो परम पुरख दे चरनां दी खाक बन जाए। नंद लाल दी इस मंग नूं सुन के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गलवकड़ी च ले लिया। आखिया तू इतना पावन है, इतना महान है कि तेरे चरनां दी खाक नूं ही जगत लोचेगा। तू इतना महान है, इतना उत्तम है। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी ऐसा फरमान किया है, अंतर जामे पुरख बिधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास अह सुख मांगे मुको कर संतन की धूरे। मैनू संत दी धूड़ बना, क्योंकि संत दी धूड़ ते संसार दे मत्थे दी धूड़ होंदी है, वो ते पावन होंदी है, वो ते महान होंदी है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हे परिपूर्ण परमात्मा
मैं ते इक्को ही दान मंगदा जे तू देवें। जे तू राजी होवें मैनू दान देण दे तां दान महिंडा तली खाक जे मिले तां मस्तक लाइए। जो तेरे नाल जुड़े हुए ने, जो सचियार हो गए ने, जिन्हां दे सारे पाप धुल गए ने, उन्हां दे पैरां दी तलियां दी जिहड़ी खाक है जे किधरे मैनू मिले तां मैं अपने मत्थे ते लावां, मैं अपने मस्तक ते लावां। और आम सिख जगत दे ते धार्मिक दुनिया दे ये आख्या जांदा है, ऐसे पुरुषां दी चरण धूड़ी मत्थे दे माड़े रेख ही मिटा देंदी है, मस्तक नूं पावन कर देंदी है, महान बना देंदी है। कूड़ा लालच छड़िए होए एक मन अलग दे हाईए। साहिब कहंदे ने झूठ दी पकड़ नूं, झूठ दे लालच नूं एक पासे रख के ऐ बंदे मन नूं इकागर करके वो जो न लखे जाण वाला अलख परमात्मा है ओदा ध्यान जोड़, ओदा चिंतन कर। इस तरीके नाल ही तू सचियार हो सकेगा। फल ते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए। एक गल चेते करके तू सुन ले कि जैसा तू बीज बोएगा वैसे ही फल तेनू प्राप्त होने। तू फल ते दृष्टि ना रख, बीज ते दृष्टि रख। संसारी हर वक्त फल ते दृष्टि रखता है, अपने बीज ते नहीं। बीज गलत बोई जाता है ते फल दी कल्पना बड़ी चंगी करी जाता है। ऐ सुख मिले, ऐ सुख मिले, ऐ आनंद मिले, ऐ रस मिले, ये फल ने ते दृष्टि फल ते है ते बोई जाता है कंडे। बाबे फरीद दा बड़ा सोहना कहना है, लोड़े दाग बिजोरियां किकर बीजे जट हंडे उन कताएं दा पैंदा लोड़े पट। मंगदा है ए अंगूर दाख खुरमानियां ते बीजदा है जट की है किकर। बीज ते ध्यान ही नहीं है। भगत ओ है, संत ओ है, दृष्टि बीज ते है, फल ते नहीं। बस जीवन दियां दो शैलियां ने, दृष्टि बीज ते है, फल ते नहीं, ये भगत है। ते जब दृष्टि बार बार बीजते होवेगी ऐसा बंदा माड़ा बीज नहीं बोएगा, क्योंकि दृष्टि बीजते है, ध्यान बीजते है। ते संसारी हो ध्यान फल ते है, बीज ते ध्यान ही कोई नहीं। बीज नूं वेखदा ही नहीं, बीज नूं सोचदा ही नहीं कि बीज की है। ध्यान फल ते है, फल चंगा मिले, फल मिठा मिले, फल रसदायक मिले, बीजी जांदा है। जंड ते किकर मंगदा पिया अंब ते अंगूर, ये संसारी दा लक्षण है। साहिब कहंदे ने इतनी गल याद रखें कि फल तेरी झोली च वही कुछ पैना है जैसा तू बीजेगा, जैसी कार कमावेगा। जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ ते ना दे पाइए। जे किधरे पूर्वले संस्कार होवन, पूर्वला संस्कार अज तो पहले जो कुछ भी कीता है वो पूर्वला कीता है। एक दिन जो पहले कीता है, एक महीना जो पहले कीता है, एक साल जो पहले कीता है, एक जन्म जो पहले कीता है, वो पूर्वला है। जो कल कर चुके हैं गुजरे हुए दे ओदे भी संस्कार बनणगे। जो एक महीना पहले कर चुके हैं ओदे भी संस्कार बनेंगे। अज तो पहले जो कुछ भी है वो सब कुछ पूर्वला है। ते महाराज कहते हैं किसी दा पूर्वला कोई लिखिया लेख होवे, जिसने कुछ पूर्व दे बीजे है, भाव जिसने कुछ कल बीजे है ते अज फल की इच्छा करेगा। ते कल बीजे ही नहीं, अज फल किथे। जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ ते ना दे पाइए। जे पूर्वले संस्कार मत्थे ते ऐसे लिखे होवन तां सचियार जेड़े ने, परम सचियार, उन्हां दी धूड़ मत्थे ते लाण नूं मिलदी है। इस तरह मत्थे दियां माड़ियां रेखां मिट जांदियां ने। मत थोड़ी सेव गवाईए, पर ऐसा हुंदा है अपनी मत थोड़ी होवे, सोचनी थोड़ी होवे, संकीर्ण होवे तां जो कुछ बंदा सेवा करदा है वो भी गवा छड़दा है। क्योंकि थोड़ी मत करके अहंकार पैदा होता है। विवेक मत चाहिए, महान मत चाहिए, प्रभु नूं समझण लई, गुरु नूं समझण लई। ते गुरु दी सब तो वड्डी दात है महान मत देनी। हार परियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। ते जैसे विवेक बुद्धि प्राप्ति होंदी है, मनुख दी सेवा नूं फिर भाग लगदे ने। मनुख दी सेवा नूं परिफुल्लत होंदी है, उन्होंने नाम दा रस प्राप्त होंदा है, उन्होंने जीवन दी जुगत प्राप्त हो जाती है, उन्होंने जीवन दा ढंग प्राप्त हो जाता है। ये वीडियो आप जी नूं किहो जी लगी? वीडियो पसंद आई इसनूं लाइक अगे शेयर जरूर करो जी। बाबा जी चैनल ते नित नवी वीडियो देखने वास्ते इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लो जी। आप जी दी बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, शुक्रिया।